Hello students, welcome to my new video. In this video, we will see the remaining part of the first lesson of history, understanding modern Indian history. And this video is the part 2 of this lesson. And what we have seen in first video, in part 1, we have seen there some new words in the beginning of this lesson and their meanings. Okay, we have understood the meaning of these words there. Then we have seen about what is history. What is history? History is the branch of knowledge that records and analyzes past events and happenings. Okay. Then we have seen about the periodization of history, and our past, our history is very long period, and that's why it is a difficult for study. Okay. And our historians, it's divided into different periods in three periods. And which are these three periods? Ancient, medieval and modern. And we have studied about the ancient period in 6th standard, and then in last year in 7th standard we have studied about the medieval period. Okay, and now in this year we will see about the modern age, about the British period in our India. Okay, ये साल हमें जो भी मॉडर्न पीरियड था अपने इंडिया का, वो पीरियड के बारे में पढ़ना है, मीन्स ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ना है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड देयर about periodization of Indian history. And this periodization, this division is not uniform for the entire world. पूरे वर्ल्ड में ये जो भी periodization है ये यूनिफॉर्मली नहीं है. कहीं पे मॉडर्न पीरियड एक सेंचुरी में स्टार्ट हो रहा है, दूसरे कंट्री में ये अलग सेंचुरी में स्टार्ट हो रहा है. ओके, देन वी हैव सीन अबाउट द मॉडर्निटी, ग्रोथ ऑफ फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्न पीरियड के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में देखा. देर आर सम फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज एंड वी हैव डीपली स्टडीड about these features of modern age in the first part of this lesson. Okay, there are some features: industrialization, urbanization, nationalism, democracy, socialism and scientific and the technological process. Okay, then we have seen the meaning of colonization. What is mean by colonization? That is one process, one policy of subjugations of one country by another. यानी एक बड़ा कंट्री दूसरे छोटे कंट्री पे कंट्रोल करता है और वहाँ के जो भी रिसोर्सेस है, जो भी लोग हैं, उन्हें यूज़ करता है अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनियल. ओके, देन वी हैव सीन अबाउट डेट्स इन हिस्ट्री. हमने डेट्स के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा. देन चूजिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स, we have seen about choosing important dates in the first part of this lesson. Then we have seen about the sources of modern Indian history. 1 minute. This topic, sources of modern Indian history, and there are different sources. And students, what is mean by sources? Sources किसे बोलेंगे हम? There are some objects, and through these objects we can get some information about the past period. That objects are called the sources. Okay, sources किसे बोलेंगे हम? कुछ ऑब्जेक्ट्स है, मीन्स कुछ रिकॉर्ड्स है, वहाँ से हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, हिस्ट्री पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम बोलेंगे सोर्सेस. एंड which are the sources? Source material is available for studying modern Indian history. There are some records, okay, written records, and like administrative records, like surveying. There are some monuments and towns also,
Okay, these are the archaeological sources, monuments and towns, and there are some written records also. And we have studied about the administrative records in first part of this lesson. हमने administrative records के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में. ओके, there is the National Archives of India. You know archives? What is mean by archives? We have studied about the archives, the place where government records and documents are preserved. जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किए जाते हैं वो प्लेस को हम बोलेंगे आर्क्यूज. एंड वेयर इज दिस नेशनल आर्क्यूज ऑफ इंडिया? एस्टाब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली. ओके, न्यू दिल्ली में ये नेशनल आर्क्यूज ऑफ इंडिया है. एंड व्हेन इट वाज एस्टाब्लिश्ड देयर in 1920s. Okay, and there are some documents, some records of Indian modern history. Okay, then we have studied about the national museum, and this national museum is also in New Delhi. ये भी न्यू दिल्ली में है. and there are some other museums also in our country. Okay, and ये जो भी नेशनल म्यूज़ियम्स है यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स है, इससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में. गॉट इट? नाउ in this video we will see about surveying. 1 minute. Surveying, this topic. Open your page number 9 while watching this video. The British believed that to rule any country effectively it is required to know that country properly. And वहाँ पे जो ब्रिटिश पीरियड था, इन अर्लियर पीरियड इन आर इंडिया, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे ये किस पे बिलीव करते थे कि अगर किसी कंट्री पे अच्छे से रूल करना है, इफ़ेक्टिवली रूल करना है, तो पूरे कंट्री के बारे में जानना ज़रूरी है. प्रॉपरली पूरा कंट्री उन्हें जानना ज़रूरी है. Therefore, detailed maps of the entire country were prepared during the early 19th century. और इसीलिए उन्होंने क्या प्रिपेयर किया वहाँ पे? डिटेल मैप पूरे कंट्री का, पूरे इंडिया का. वेन ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी के शुरुआत में वहाँ पे एक मैप बनाया गया अपने इंडिया का. Revenue surveys were conducted in the villages to know about the topography, soil quality, flora, fauna, local history and the cropping patterns. And there were revenue surveys. Okay, you know revenue means tax के लिए वहाँ पे सर्वे कंडक्ट किए गए इन विलेजेस में. ओके, एंड फॉर व्हाट? वहाँ की जो भी टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मीन्स लैंड. टोपोग्राफी का पूरा मीनिंग क्या आएगा कि देर आर सम लैंड फॉर्म्स, देर आर वैलीज, देर आर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, ये सभी चीज़ें, ये सभी लैंड फॉर्म्स अपने इंडिया में है. ओके, एंड ऑल दीज लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड टोपोग्राफी. इसे ही हम बोलेंगे टोपोग्राफी. तो ये टोपोग्राफी के बारे में उन्हें जानना था. सो दे कंडक्टेड द रेवेन्यू सर्वेस. दे वांटेड टू नो अबाउट द soil quality from the villages. They wanted to know about the flora and fauna. Flora means vegetation, पूरे plants इसमें आएंगे. fauna means animals. Okay, उन्हें हमारे इंडिया के प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए थी, एनिमल्स के बारे में जानकारी चाहिए थी. दे वांटेड टू नो अबाउट द लोकल हिस्ट्री ऑल्सो ऑफ आवर इंडिया एंड द क्रॉपिंग पैटर्न्स. मीन्स जो भी फार्मर्स थे वो कौन से क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो किया करते थे, ये क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में उन्हें जानकारी चाहिए थी अपने इंडिया से. एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्टेड द रेवेन्यू सर्वे इन आवर इंडिया. Okay, got it?
about revenue survey. Then from the end of 19th century, census surveys were carried out and they were held after every 10 years. And ये जो सेंसस सर्वे रहता है ये कितने सालों के बाद लिया जाता है? आफ्टर 10 ईयर्स. ओके, हर 10 ईयर्स के बाद अपने इंडिया में अभी भी ये सर्वे होता है. what is the use what are the uses of these survey? These surveys provided information on the size and distribution of population. ये सर्वे की वजह से हमें पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं. ओके, दिस सर्वे प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कास्ट. और वहाँ पे ये सर्वे की वजह से ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ये जो सर्वे होते थे, सेंसस सर्वे, इनकी वजह से लोगों के कास्ट के बारे में उन्हें पता चलता था. एंड रिलीजन्स के बारे में वहाँ पे पता चलता था. एंड ऑक्यूपेशंस, यू नो ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशन मीन्स वर्क, काम धंधा. ओके, व्यवसाय बोलेंगे हम, सॉरी, व्यवसाय, बिजनेस. एंड अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स विच आर अवेलेबल फॉर यूज टुडे. और भी कुछ जानकारी उन्हें मिलती थी. ये जो सर्वे होता था सेंसस सर्वे, एंड दिस सर्वे आर अवेलेबल फॉर अस टुडे ऑल्सो. अभी भी अपने इंडिया में ये सेंसस सर्वे होते हैं. गॉट इट? देन नेक्स्ट इज हियर मॉन्यूमेंट, सॉरी, monuments and towns. The Britishers constructed forts, residentials, official and public buildings and quarters. And during British period, these Britishers constructed the forts. Forts means किले. उन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, क्या क्या कंस्ट्रक्ट करते थे वो? फोर्ट्स, रेसिडेंशियल, रहने के लिए वो कुछ घर बनाते होंगे, हाउसेस बनाते होंगे. ऑफिशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, ऑफिशियल और पब्लिक बिल्डिंग्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते थे. एंड क्वार्टर्स. ओके, द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, Fort William in Kolkata and Rashtrapati Bhavan are some of the important buildings constructed during this period. And these are the name of the important buildings constructed by British in our India. ओके, ये सभी बिल्डिंग्स के नाम हैं. ये बिल्डिंग्स ब्रिटिशों ने कंस्ट्रक्ट की हुई है अपने इंडिया में. बिसाइड्स द ब्रिटिश ऑल्सो फाउंडेड टाउन्स, इसके साथ उन्होंने टाउन्स भी फॉर्म किए हैं. सच एज शिमला, द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज. और जैसे शिमला जैसे क्या थी ये? द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज. दिस ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग हिस्ट्री. एंड इसकी वजह से भी बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हिस्ट्री लिखने के लिए. गॉट इट? Now there are MCQs. We have to solve these MCQs here. First, Fort Williams is situated in A. Kolkata, B. Chennai and C. Mumbai. Where is this William Fort situated? In Kolkata. What is the answer here? Kolkata. A option is the answer here. Okay. Then second, the National Archives of India was established in New Delhi. In when these National Archives of India was established in 1920. Okay. B option is the answer here. कब ये नेशनल आर्कीव्स एस्टेब्लिश हुआ था अपने इंडिया का? 1920 को. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ट्राई टू फेवर एंड हाईलाइट्स द व्यू पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स बट इग्नोर द कॉमन पीपल्स व्यू पॉइंट.
फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशन, पेन्स एंड हैप्पीनेस। एंड ये जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ये हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट ये जो भी रिकॉर्ड्स है ये कुछ छिपाते भी है। हाइड मीन्स छिपाना, ये शो नहीं करते। अब ये क्या नहीं शो कर रहे हैं ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ट्राई टू फेवर एंड हाईलाइट्स द व्यू पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स गवर्नमेंट के जो भी व्यू पॉइंट्स है इसे इसके फेवर में रहते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है गवर्नमेंट के वही वो शो करेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स ही ये शो करते हैं। बट इग्नोर द कॉमन पीपल्स व्यू पॉइंट। लेकिन जो कॉमन पीपल्स रहते हैं उनके जो भी व्यू पॉइंट्स होंगे, उनकी जो भी सोच होंगी ये यहाँ पे शो नहीं होती ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। उनके जो भी फीलिंग्स है कॉमन पीपल की वो भी यहाँ पे शो नहीं होते। एक्सपेक्टेशन, उन्हें क्या चाहिए ये भी यहाँ पे शो नहीं होता ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। पेन मीन्स उनका दुख, दर्द, ये भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एंड हैप्पीनेस, यानी उनका जो भी हैप्पीनेस है वो भी यहाँ पे शो नहीं होता इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमें सिर्फ क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, यही हमें यहाँ पे मिलेगा इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। और जो कॉमन पीपल है, कॉमन लोग हैं, उनके व्यू पॉइंट्स हमें नहीं मिलेंगे, उनकी सोच यहाँ पे नहीं मिलेगी। उनकी जो भी फीलिंग्स है, उनके एक्सपेक्टेशन, पेन्स एंड हैप्पीनेस हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेंगे। फॉर दैट वी नीड to look at other sources such as autobiographies, travelers accounts, novels and poems। अब ये जानने के लिए हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है? There are some other sources also like autobiography। What is mean by autobiography? Autobiography किसे बोलेंगे हम? There are two stories। एक स्टोरी रहती है कि हम खुद के लाइफ के बारे में कुछ लिखते हैं पूरा डिटेल में, दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी। एंड एक स्टोरी रहती है कि दूसरे पर्सनालिटी के बारे में, दूसरे पर्सन के बारे में हम कुछ लिखते हैं स्टोरी, उसे हम बोलेंगे बायोग्राफी। गॉट इट? तो यहाँ पे कुछ ऑटोबायोग्राफीज हमें मिलती है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। ओके, देन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। Travelers accounts means some visitors were came in our India for visiting to our India. Okay, and they wrote about our India, about our Indian places, rulers। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि उनके बारे में ये ट्रैवलर्स वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स बनाते थे, रिटर्न रिकॉर्ड्स। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रैवलर्स अकाउंट्स। एंड नॉवेल्स, some peoples wrote the novels during this period। okay, तो ये नॉवेल से भी हमें लोगों के फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। एंड पोएम्स, देयर वर सम पोएट एंड दे wrote the poems। okay, and through these poems we can get the information about common people। got it everybody? Many foreign authors such as Vincent Smith and Max Muller wrote extensively about history। और बहुत सारे ऐसे ऑथर्स थे, ऑथर्स मीन्स राइटर, विसेंट स्मिथ एंड मैक्स म्यूलर जैसे, उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री अपने इंडिया के बारे में लिखी है। एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अलॉन्ग विथ इंडियन फिलोसॉफी। बुक्स दैट कंटेन कलेक्शन ऑफ स्पीचेस बाय नेहरू और सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ गांधी जीज कलेक्टेड वर्क्स और इम्पोर्टेंट वर्क बाय ग्रेट लीडर्स like Maulana Abul Kalam Azad and Dr. Baba Saheb Ambedkar are extremely important।
एंड सम अदर ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑल्सो। बहुत सारी ऐसे ग्रेट लीडर्स अपने इंडिया में थे कि उनके जो भी स्पीचेस है उनके कलेक्शन से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कॉमन पीपल के बारे में। कौन से ग्रेट पर्सनालिटीज़ यहाँ पे दी हुई है? नेहरू, गांधी जी एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद and Dr. Baba Saheb Ambedkar. Okay, these books present the Indian perspectives. Many newspapers were also published in India during this period. This helps in understanding the views and opinions of the Indians. And there were many newspapers also published. ओके वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए थे इंडिया में। और ये न्यूज़पेपर से भी हमें जो भी व्यूज़ थे कॉमन पीपल के, जो भी ओपिनियंस थे इंडियंस के, इनके बारे में समझ में आता है। दे वर पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस like Tamil, Urdu, Bengali, Gujarati, Marathi and Hindi. एंड ये जो भी न्यूज़पेपर्स थे ये इंग्लिश में भी पब्लिश होते थे एंड देयर वर सम वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस ऑल्सो। यू नो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस कौन सी थी? तमिल, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी एंड हिंदी। ये सभी लैंग्वेजेस में भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे। ओके राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मिरत उल अकबर द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन पर्सियन लैंग्वेज। एंड ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने मिरत उल अकबर ये फर्स्ट न्यूज़पेपर पर्सियन लैंग्वेज में स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। एंड बाल गंगाधर तिलक ये जो थे, इन्होंने केसरी नाम का मराठी न्यूज़पेपर पब्लिश किया था एंड मराठा इन इंग्लिश। ऑल दीज न्यूज़पेपर्स थ्रू न्यूज़, cartoon, letters and editorials created awareness about the intentions of British. There were many great leaders during British period in our India. Okay, and these great leaders of our India published the newspapers for what? For creating the awareness about the intention of the British. ब्रिटिशों का क्या इंटेंशन है, ये लोगों को समझ में आने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए वहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर्स थे वो पब्लिश होते थे। एंड थ्रू न्यूज़, थ्रू कार्टून्स, लेटर्स एंड एडिटोरियल्स दे क्रिएटेड द अवेयरनेस। ओके, जो भी अवेयरनेस था ब्रिटिशों के बारे में वो लोगों में क्रिएट करने के लिए वहाँ पे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे। बिसाइड्स लिटरेरी सोर्सेस, एंड डू यू नो what is mean by literary sources? Which sources are included in the literary sources? There are रिटर्न रिकॉर्ड्स। ओके, हमने रिटर्न रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा। देयर वर डिफरेंट सर्वे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड दिस ऑल survey records are included in the literary sources, and there are some autobiographies, travelers record, poems, all these things are included in literary records. And we have studied about the newspapers also, and these newspapers are included also in literary sources. Okay, and besides this literary sources, map, photographs and the paintings also constitute the important part of the sources. और ये literary sources के साथ वहाँ पे मैप भी हमें हेल्पफुल है, फोटोग्राफ्स एंड पेंटिंग्स जो भी बनाई गई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ये सभी चीज़ों से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रिटिश पीरियड के बारे में। गॉट इट? Along with photographs, radio broadcast of important leaders
and motivational songs aired to prepare the people for struggle against the British rule are very important sources for building the history of this period. एंड फोटोग्राफ्स वहाँ पे थे, इसके साथ रेडियो ब्रॉडकास्ट थे इम्पोर्टेंट लीडर्स के, एंड मोटिवेशनल सॉन्ग्स ऑल्सो aired to prepare the people for struggle against the British rule. Okay, and these sources are very very important for building the history of this time. और ये सभी sources बहुत ही important है. जो भी ब्रिटिश पीरियड था अपने इंडिया में, वो ब्रिटिश पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के लिए ये सभी सोर्सेस इम्पोर्टेंट माने जाते हैं. नाउ दे आर केप्ट इन द ऑल इंडिया रेडियोज़ आर्काइव्स. और ये सभी सोर्सेस कहाँ पे रखे हुए हैं? इन द ऑल इंडिया रेडियो आर्काइव्स. ओके, ऑल दी सोर्सेस however were produced by the educated people. और ये सभी sources कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं? एजुकेटेड पीपल से. दिस रियली कैप्चर द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, पीजेंट्स, माइन वर्कर्स और पुअर पीपल इन स्ट्रीट्स. और यहाँ पे जो भी कॉमन पीपल थे, पुअर लोग थे. ओके, ट्राइबल्स मीन्स आदिवासी लोग, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, माइन वर्कर्स जो माइन में वर्क करते थे उन्हें माइन वर्कर्स बोलेंगे, पुअर पीपल, और जो स्ट्रीट पे रहते हैं, रास्ते पे रहने वाले लोग, इनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है. Their experience and their history was totally different from those of the literate society. और उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उनकी जो भी हिस्ट्री है, ये बहुत ही अलग है. जो लिटरेट सोसाइटी है, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी थी वहाँ की, इनकी जो भी हिस्ट्री है ये अलग है. To know more about them, we need to look deeper, and this can be done by through an unbiased study that we will attempt to do. Okay, now students, our lesson is completed here. We have to study about the points to remember. First, history denotes a continuous flow of events and happening. What is history? History denotes a continuous flow of events and happening. Then history is divided into three periods: ancient, medieval and modern. Next point is here, ये जो हिस्ट्री है ये 3 periods में डिवाइड किया हुआ है. And which are these 3 periods? Ancient, medieval and modern. Then third point, दिस डिवीज़न इज़ हाउएवर नॉट यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर वर्ल्ड. और ये जो भी डिवीज़न है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पीरियड का, ये पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मली नहीं है. मीन्स अगर अपने इंडिया में मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है, तो यूरोपियन कंट्री में यही मॉडर्न पीरियड 16th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है. और 16th सेंचुरी में अपने इंडिया में मिडिवल पीरियड था. ओके, डेट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री. और जो भी डेट्स रहती है हिस्ट्री की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Many types of literary sources are available for the study of modern history, and there are many types of literary sources. And do you know what is meant by literary sources? All written records are included in these literary sources, and there are many types of literary sources available for study of modern history. जो भी modern history है अपने इंडिया की, उनके बारे में स्टडी करने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. देन सम रिकॉर्ड्स डू नॉट रिवील व्हाट द सिटीजन ऑफ द सब्जुगेटेड कंट्री फेल्ट एंड व्हाट वर द intention that lay behind the subjugating powers actions. And there are
literary sources, and in literary sources there are written records, there are official records about the British period, about the modern period, but these written records, these official records hide the feelings and emotions of common people ड्यूरिंग दिस सोसाइटी. ओके, वो जो सोसाइटी थी, वो जो पीरियड था, वहाँ पे जो भी कॉमन लोग थे, पुअर पीपल थे, फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, इनकी जो भी फीलिंग्स थी, ये हमें ये रिटर्न रिकॉर्ड से नहीं पता चलता. ऑफिशियल रिकॉर्ड से लोगों के फीलिंग्स के बारे में, लोगों के व्यूज़ के बारे में, लोगों के ओपिनियंस के बारे में यहाँ से हमें जानकारी नहीं मिलती. ओके, द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स. और जो भी सोर्सेस है हिस्ट्री के, ये कहाँ से मिलते हैं, कौन से हैं, ऑफिशियल एंड द अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ओके, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन से आएंगे, सर्वे आएंगे. वहाँ पे कौन से सर्वे थे, रेवेन्यू सर्वे एंड सेंसस सर्वे. ओके, एंड अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऑटोबायोग्राफी आएंगी, पोएम्स, नॉवेल्स, ये सभी चीज़ें अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आएंगे. ओके, गॉट इट. नाउ our lesson is completed here. Now come to the exercise on page number 11. There are some MCQs and we have to solve the MCQs here. First MCQ, the Indian history is divided into how many periods? In 3 periods. C option is answer here. Okay, then second, fill in the blanks. How says the documents relating to government orders and legal acts? What is the answer here? Where is this documents preserved? The National Archives. Okay, B option is the answer here. The National Archives houses the documents relating to government orders and legal acts. Okay, then fill in the blanks. First, in India, modern period starts after the death of Aurangzeb. Okay, what is answer? औरंगजेब. औरंगजेब के बाद अपने इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो चुका था इन 1707. ओके, सेकेंड, द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. व्हाट इज आंसर हियर? New Delhi. Okay, then third, the first newspaper in Persian language was started by Raja Ram Mohan Roy. What is the answer of this? Fill in the blanks. Raja Ram Mohan Roy. This fill in the blank is very important for you. ऐसे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं डीपली, ये आपको अगर आप आगे चल के लाइफ में फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं लाइक MPSC, UPSC, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. ओके, दैट्स वाई दिस fill in the blank is very important. The first newspaper in Persian language was started by Raja Ram Mohan Roy. Got it? Then match the followings. First, Raja Ram Mohan Roy. Again, what is the answer of this Raja Ram Mohan Roy? वहाँ पे हमें क्या पूछा है कि फर्स्ट पर्सियन न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था अपने इंडिया में. यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने क्या स्टार्ट किया था ये पूछा है. ओके, देर आर 4 ऑप्शंस. केसरी, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज, मिरत उल अकबर एंड न्यू दिल्ली. आंसर इज हियर सी ऑप्शन, मिरत उल अकबर. दैट इज द अकबर, not Akbar. Okay, Mirat ul Akbar, and that is the answer of this Raja Ram Mohan Roy. That newspapers were started by Raja Ram Mohan Roy in our India. Okay, then second, National Museum. What is the answer of this National Museum? Where is this established, this National Museum? D option is the answer here, New Delhi. Okay, 1 minute, wait. New Delhi. And Raja Ram Mohan Roy, Mirat ul Akbar. Then Bal Gangadhar Tilak. What is the answer of this Bal Gangadhar Tilak?
केसरी, इन्होंने कौन सा अखबार स्टार्ट किया था? केसरी. देन शिमला. What is the answer of this Shimla? B option is the answer. It was the summer capital of British Raj. Okay. Now multiple choice questions, MCQs again. The term colonial is used for the fill in the blanks period. Which period? British. A option is the answer here. कौन से पीरियड को कॉलोनियल कहा गया? ब्रिटिश पीरियड को. ओके. देन सेकेंड, मराठा was started by, who started this newspaper in our India? Raja Ram Mohan Roy, Bal Gangadhar Tilak and Rabindranath Tagore. B option is the answer here. Bal Gangadhar Tilak. Okay. Started the Maratha in our India. Now this lesson is completed here. You have to write down the question and answers of these questions in your notebook. Okay, I will send it. And students, listen here. You should take 200 pages notebook for whole SST. Don't take separate notebook for each subject. Means geography, history and civics के लिए आपको separate notebook लेने की ज़रूरत नहीं है. That is not necessary. Got it? You have to take only 200 pages notebook and write down the question and answers of lessons continuously in that notebook. Got it? Have a good day.